chemical bonding also include the usage of periodic table, and you can recall periodic table here also. So just make sure that how can you use the periodic table in chemical bonding. That's very important. Today I am sharing the slide via Google Classes because all the topic is theoretical. So we have so many definitions, so many basic concepts. They can be understood by the use of the, we can say, Google slide. Before starting, first we discuss what is a bond. If someone asks you what is a bond, so very simple definition. What is chemical bond? If anyone asks you what is chemical bond, so you simply say that chemical bond is a linkage, a type of force that holds two atoms. Suppose this is atom A and this is atom B. The two atoms are combined together by a linkage shown by the, we can say, line, is nothing but called a bond. And this bond is a force of attraction that hold atom A with atom B and form a molecule that is called AB. So when two atoms are held together by a force, by a linkage, by a sort of, we can say, attraction, hold the two atoms together to form a stable molecule AB. So this sort of force between the two atoms is together what we called chemical bond. Now very important that a chemical bond that we are considering here is made up of two electrons. Okay, so basically two electrons are combined and they link two atoms. If there are four electrons, let's say if there are four electrons, then there are two bonds. If there are 6 electrons, that means 3 electron pair, there are 3 bonds. And the maximum bonds a compound, a molecule can form is just 3, not more than 3. So the maximum number of bonds a molecule or atoms combine to form molecule, that is 3, not more than 3. Okay, that means 3 pair of electrons combine together form a molecule. Now basically we say that it is a force that is holding the atoms together to form a molecule. Now the reason why the bond is formed, first of all, you know that if we have a atom A with, let's say, 1 electron, atom B with 1 electron, so both atoms are unstable. In order to stabilize them, the atom B share electron pair of A, and similarly atom A share electron pair of B, and they form A share B. That means they form A bond B. Okay, so the two electrons form a single bond. Two electrons form a single bond, and the single bond is called, we can say, linkage, a force that is holding two atoms. And now based on the same effect, what we now prefer to say that a chemical bond is just a hypothetical case. Hypothetical means that we assume that there is a bond, okay, that we assume there is a force. Next is, I am discussing the reason. So the most important reason is that we need to stabilize the atom by means of either octet, okay, octet rule, or either by means of duplet rule. Duplet means when the electrons are equal to 2 or electrons are equal to 8. So each combining atom, they prefer to undergo either octet rule or duplet rule. Duplet rule is only possible when there is only one shell. But when the shell number increases,
we always follow octet rule. Okay. Now the case is somehow we can say it is very similar. The case is very similar. Now we discuss that what are the reasons for the formation of the covalent bond. So the first reason is the concept of energies. Okay, here I have given the first reason is concept of energies. So basically when atoms combine, they form molecule AB with a release of energy. Okay, that means the atom combine and they will release energy. So the bond formation is basically exothermic process. Okay, bond formation is exothermic process, and when energy is released, that means the molecule AB has minimum energy as compared to reactant A and B. And if there is minimum energy, then you know that for minimum energy there is maximum stability. तो अगर मॉलिक्यूल में मिनिमम एनर्जी हमारे पास है तो वहां पे स्टेबिलिटी होती है, मैक्सिमम होती है. तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन रिजल्ट होगा तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके पास हाई एनर्जी पोजेस होगी, वो अंडरगो रिएक्शन में जाएंगे, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे AB with a release of energy. This release of energy means that the molecule AB possesses a minimum energy, and when the energy is minimum, automatically the stability is maximum. Okay, and when the energy is maximum, suppose if you have a maximum energy, then there is maximum reactivity. Okay, then the reactivity of the compound is maximum. Okay, this is the case. So remember, if you have minimum energy, then automatically the stability is maximum. It is inversely proportional to stability. Okay, and you know that the reactivity of the substance is always inversely proportional to stability also. You can write as it stability is inversely proportional to reactivity, and stability is inversely proportional to reactivity. Okay, and if the molecule is more stable, then it is also inversely proportional to energy, and if energy is maximized, then reactivity is also maximized. So this is the first case. So the first concept is we can say it is bonding concept, and that is yes, I am admitting. Okay, Hanji, if you have a question you can ask. Okay, now the real question lies in the fact that what basically is the concept. For energy concept, you know that a molecule may possess the force of repulsion and force of attraction. So when the magnitude of the force of attraction is more than the repulsion, then the bond is formed. Understand? क्योंकि molecule में दोनों होंगे भी, repulsive force भी होंगे, attractive force भी होंगे. बट जब attractive forces का magnitude हमारे पास ज्यादा है as compared to repulsive force, bond बनेगी. और जब हमारे पास repulsive force का magnitude ज्यादा है as compared to attractive force, उस समय हमारे पास कोई भी टाइप का बॉन्ड नहीं बनेगा. ये भी आपको याद रखना है. तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे पास जो डिस्टेंस है दो एटम के बीच में, सपोज ये दो एटम है, तो दो एटम के बीच में जब डिस्टेंस हमारे पास, उस डिस्टेंस पे जहां पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज मैक्सिमम, वही हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा बॉन्ड. ओके, अगर इन दोनों के बीच में एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे यहाँ पे, उस समय वो बोलेंगे कि वो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, बॉन्ड है हमारे पास. ठीक है, इतना सा बता देते भी. Next concept is the concept of stability. So as you know that if you have a atom with suppose 11 electrons, 2, 8, 1. Okay, so this atom prefer to lose one electron. It will lose one electron. Why? Because when it loses one electron, it will undergo one positive charge and it will form 2 and 8. Means one electron is lost from the outermost shell. Now the outermost shell is octet stable. So that means A atom will lost electron and form octet stable. Likewise, if you have atom like B with 17 electron, that means 2, 8 and 7, its outermost shell consists of 7 electron. If it adds 1 electron, it will form B negative
and this is called 288. Now its outermost shell is octet stable and it will prefer to form B negative. Now the first case where I just add one electron, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये मतलब चलो सेकंड केस ही बता रहा हूँ, चलो अभी तो वेयर इलेक्ट्रॉन एडेड, जब इलेक्ट्रॉन एड हुआ नेगेटिव चार्ज तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। बताओ अभी ये प्रोसेस कौन सा है, एनीवन कैन से व्हाट इज दिस प्रोसेस? इसको पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और हमेशा क्या होती है यहाँ पे, ये एक्सोथर्मिक होती है। और दूसरी बात यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होगा एनर्जी आपकी रिलीज होगी, तो अगर एक्सोथर्मिक हमारे पास तो एनर्जी का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप क्या करती है भाई, डिक्रीज करती है। ये भी आपने याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज दैट व्हेन एन एटम इन आइसोलेटेड एंड एक्साइटेड स्टेट add electron to form anion with the release of energy, that is called electron affinity। और जितने भी आपके हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस मतलब 17 ग्रुप एलिमेंट्स, तो 17 ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं उनको हेलोजेंस बोला जाता है। तो हेलोजेंस की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है और सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है, तो ये भी याद रखना है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है वो क्लोरीन इज वी कैन से इज मोर having more electron affinity as compared to किसके भाई साथ, फ्लोरीन के साथ। और पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, ये याद रखना। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का केस बताया मैंने और ये बताया मैं किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस आपको पता होगा तो आपको समझ आया होगा, नहीं तो आगे डिस्कस करेंगे। तो भाई यहाँ पे अब देखो हमारे पास या तो ये लूज करेगा या तो गेन करेगा, और लूज गेन क्यों करेगा, क्योंकि इसको क्या बनाना है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल किसकी, स्टेबल होती है हमारे पास नोबल गैसेस की। तो अगर नोबल गैसेस की बात करें तो सबके पास क्या भाई, वहां पे सबके पास ऑक्टेट है, एक्सेप्ट एक वहां पे हीलियम है जिसके पास ड्यूप्लेट है। तो हीलियम की बात करें इट इज 1s2। तो आप देखते हो यहाँ पे खाली एक शेल है, तो कभी कभी जिस एटम में अगर सपोज एक शेल है उसके ड्यूप्लेट ही बन सकता है। अगर एक शेल से मैक्सिमम हमारे पास तो प्रेफर करेगा वो ऑक्टेट बनाना, तो यहाँ पे एक ही शेल है तो ड्यूप्लेट ही बनाएगा, तो ये ड्यूप्लेट बनाएगा। बाकी नोबल गैसेस की बात करें, जैसे बात करो नियान की, तो नियान का नंबर 10, 10 मतलब 28। ठीक है, तो 28 की बात करो यहाँ पे तो ये भी इसका ऑक्टेट बन रहा है। देन वी गो फॉर आर्गन, आर्गन इज 18, देन इट इज 2 8 10 एंड 8 अगेन 18 बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्टेट हो रहा है। तो हर कोई प्रेफर करता है कि वो हमारे पास नोबल गैस कन्फ्यूजन टेन करे। अब भाई कोई भी अगर नोबल गैस कन्फ्यूजन हमारे पास है तो उसको कैसे दिखाते हैं, देखो हम जब भी बात करते हैं बॉन्ड की तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। ओके, so it is only valence electron that participate in bond formation, the number one case। okay, that means we are preferring something called valency। so valency is capacity to capacity of sharing, we can say it is capacity of, we can say, tendency of the sharing of electron। so either by losing or by mutual sharing, whatever case, by transference, by loss, by gain, or by mutual sharing of electron or by sharing of electron, that is the capacity of an atom, how it prefer to share। अब यहीं पे बात करूं भाई मैं आपको, तो यहाँ पे बताया मैंने सबसे पहले एक टर्म का यूज करो, मैं लिविस सिंबल का यूज करूं। व्हाट इज लिविस सिंबल, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने लिया सपोज सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम भाई हमारे पास है, तो पहले सोडियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्ट लिखता हूं भाई, इट इज 281, मैं वही लिख रहा हूं जो 10th में आपने पढ़ी है। ठीक है, तो आप देखो भाई इसके ओटम शेल में ये इसका के शेल, एल शेल, एम शेल, और m इज द ओटमो शेल, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, तो मतलब इसका लिविस सिंबल कैसे दिखाएंगे, सोडियम हो गया और एक डॉट आ गया, दिस इज द लिविस सिंबल। ओके, so Lewis symbol is nothing but representation of the last electron which will participate in the bond formation। okay, likewise I am taking one more example, like मैं बोल रहा हूँ आपको किसकी, मैं बात कर रहा हूँ फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, अगर हम इसको ब्रेकअप करें तो इसके दो ही शेल बनेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7, तो 7 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप ऐसे दिखा दो भाई, 2 4 6 एंड 1 7। अब इसमें तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट वैलेंसी कितनी भी, तो वैलेंसी आपको जब बताया था मैंने कि जब इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर जाएं तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस
valence electrons. So valence is equal to 1. So it needs only 1 electron, so its valency is equal to 1. और वैसे भी जितने भी हेलोजन है 17 ग्रुप एलिमेंट है उन सबकी वैलेंसी क्या है 1 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 आएगी। तो आप इसको जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ, तो आप इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो। अब देखो भाई नियान की बात करें तो नियान की वैलेंसी हमारे पास क्या है, तो नियान की बात करें इट इज 2 and 8। तो 2 and 8 मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसके शेल में 8 है, ऑक्टेट स्टेबल है, तो ये आपको ऐसे दिखा देंगे, दिस इज द केस। तो ये इसका लीव स्ट्रक्चर है। बट जब 8 में से हम 8 माइनस करते हैं 0 आता है, तो मतलब इसकी वैलेंसी क्या 0, मतलब नियान कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, वो इनर्ट होगा, स्टेबल होगा। तो भाई ये लीव स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दी हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं भाई हमारे पास, देखो तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, केमिकल बॉन्ड का, जो एक तरह की लिंकेज है जो होल्ड करती है 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को, और एक बॉन्ड बनती है 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी कि कितने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं। तो भाई आपने तो पढ़े हैं और आप ये भी पढ़ सकते हो कि भाई मैं आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी बता रहा हूँ, हालांकि बुक में ऐसे कैटेगरी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ केमिकल बॉन्ड 2 कैटेगरी के, एक तो इंटर एटॉमिक, दूसरा बता रहा हूँ मैं इंटरमॉलिक्यूलर, 2 कैटेगरी। अब इंटर एटॉमिक मतलब जब एटम कंबाइन करें एटम के साथ, या फिर कोई आयन कंबाइन करे, जैसे मान लो ये कैटाइन है, एनाइन के साथ कंबाइन करे, वो कंपाउंड हमारे पास प्रेफर होगा वो कौन सा, इंटर एटॉमिक में, एटम या एटॉमिक स्पीशीज में, आप बोल सकते हो एटॉमिक स्पीशीज में। एटॉमिक स्पीशी में भी कैटाइन, एनाइन और एनी एटम। बट जब हमारे पास बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है किसमें, मॉलिक्यूल में, तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूल। जैसे मैं बताता हूँ भाई ये वाटर हमारे पास है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाटर हमारे पास है, तो ये दूसरे वाटर के साथ जुड़ रहा है। अब दूसरे वाटर के साथ जुड़ रहा है तो मैं ऐसे बता देता हूँ सपोज, तो यहाँ पे बेसिकली 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है भाई आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो भाई जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच में एक फोर्स बनेगी यहाँ पे जिसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल डाइपोल क्या होता है हम नहीं पढ़ेंगे, बट इतना बताएंगे कि ये हमारे पास एक आपका वीक फोर्स है। तो मॉलिक्यूल जो है आपस में बॉन्डेड भी नहीं है, बट मान लो उनके बीच में एक फोर्स है जिनको लिंक कर रही है हमारे पास, इसी को बोलेंगे हम यहाँ पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल फोर्स। तो यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे ये क्या है, ये एटॉमिक बॉन्ड्स हैं, ये भी आपके, तो मान लो अगर कोई हमारे पास जैसे एच है तो इसमें क्या है, एटॉमिक बॉन्ड है, ठीक है, ये एटॉमिक बॉन्ड्स है। अगर इसी तरह से मैं बताऊं सपोज आपका एच एफ बताया मैंने, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटॉमिक बॉन्ड है एटम के बीच में, ठीक है, एटॉमिक बॉन्ड है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है भी हमारे पास एच एफ का, तो ये भी क्या है, यहाँ पे एटॉमिक बॉन्ड है। बट 2 मॉलिक्यूल जो एच एफ के जुड़े हैं उनके बीच में, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में एक फोर्स बनेगी डेवलप यहाँ पे। तो ये जो बनाएंगे एक मॉलिक्यूल एच एफ का, दूसरे मॉलिक्यूल एच एफ का, तो इसको बोलेंगे हम कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स की, जहां पे एटम इन्वॉल्व है, आयन इन्वॉल्व है या कोई भी इन्वॉल्व है, तो उसमें भी आपका आयनिक बॉन्ड आता है, कोवेलेंट आता है, कोऑर्डिनेट आता है, मेटालिक आता है, 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अगेन आई रिपीटिंग कि उसमें क्या क्या आएगा, आयनिक बॉन्ड आएगा जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट कहते हैं, कोवेलेंट आएगा, ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट आएगा, उसके बाद मेटालिक आएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द आयनिक बॉन्ड, ओके। अब क्यों है उसकी तो बाद में बात करते हैं। और सबसे वीकेस्ट आती है कौन सी, वंडर वाल फोर्सेस। तो भाई मॉलिक्यूलर में 2 आते हैं, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, दूसरा आता कौन सा, मॉलिक्यूलर वंडर वाल फोर्सेस। तो ये जो वंडर वाल फोर्स है सबसे वीकेस्ट हमारे पास है, ठीक है। तो वीक बॉन्डिंग भी बोलते हैं इनको, इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इट इज आल्सो कॉल्ड वीक बॉन्डिंग, ओके, वीक बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट देखो भाई आयनिक कंपाउंड के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मेटल और नॉन मेटल चाहिए। कोवेलेंट कंपाउंड को आपको दोनों नॉन मेटल चाहिए। अच्छा भाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको एक डोनर चाहिए, डोनेट करे जो इलेक्ट्रॉन, दूसरा एक्सेप्टर चाहिए। मेटालिक बॉन्ड के लिए आपको दोनों मेटल चाहिए भाई। तो रिमेंबर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि भाई मेटालिक बॉन्ड में दोनों मेटल चाहिए, आपको मेटल मेटल बॉन्ड होती है। कोऑर्डिनेट में 1 इज डोनर जो डोनेट करेगा, अदर इज एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करेगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग में दोनों नॉन, आपका जो आयनिक बॉन्ड है उसमें मेटल एक होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल। और आपको पता है मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की बॉन्ड बनती है इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जब एक नॉन मेटल, देखो भाई नॉन मेटल दोनों क्या होंगे, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होगी। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है।
तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो हैं अगर वो कोवलेंट हैं तो उनके बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास जो नॉन मेटल जरूर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ H2। तो भाई H2 क्या भी हमारे पास, अब देखो ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है, और दोनों क्या है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह से बताता हूँ, सपोज मैं HCl बता रहा हूँ भाई। अब HCl ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कौन सा कोवलेंट है भाई। क्योंकि कोवलेंट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि कोवलेंट इसलिए हमारे पास है कि यहाँ पे दोनों नॉन मेटल हैं। बट अगर मैं आपको NaCl बताऊं, NaCl से बताया मैंने, तो NaCl आपका यहाँ पे रहा, ये मेटल रहा, ये रहा नॉन मेटल हमारे पास। दूसरी बात देखो तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अभी हम इसको इतना डिस्कस नहीं करें, बता रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मेटल नॉन मेटल की पहचान क्या हमारे पास यहाँ पे। अब आते हैं भाई कहाँ पे, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा भी हमारे पास, कोवलेंट, और सबसे वीकेस्ट कौन सा भी हमारे पास, वंडर वाल फोर्सेस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज आयनिक कंपाउंड। तो हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक सिंपल सा फर्स्ट इंटर एटॉमिक कंपाउंड की बात करें। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड मैंने बताया आपको भाई कहाँ पे बनते हैं, तो दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लेट्स से ए पॉजिटिव, and most electronegative element, let's say B negative. Okay, and they are held together by electrostatic force of attraction between the A positive cation and B negative anion. That means electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. Okay, and this electrostatic force of attraction result in formation of ionic bond, ionic compound, or we can say they result in formation of electrovalent compound, इनका दूसरा नाम भी। अब दूसरी बात देखो भाई, जब जब कोई हमारे पास कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम इस कंपाउंड को कहते हैं पोलर। तो पोलर मतलब उनके पास दो पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल्स, नेगेटिव पोल्स। ठीक है, या उनके बीच का जो डिफरेंस है कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एक नेगेटिव जो रहा है, तो जब भी उनके बीच का कोई डिफरेंस होगा हमारे इसको बोलेंगे यहाँ पे पोलर। तो दे आर पोलर कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो आपकी आयनिक बॉन्ड है, दे आर आल्सो कॉल्ड पोलर बॉन्ड्स। तो अभी मैंने कहा नाम इनका आयनिक बॉन्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड पोलर बॉन्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, पूरा नाम लिख देना यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली होते क्या भी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रो आयनिक बॉन्ड जो है, दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर फॉर्म्ड बाय द, कोई पूछे आपको कैसे बनते हैं, तो दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर करता है, मेटल से, किसकी तरफ जाता है, नॉन मेटल की तरफ। मेटल क्यों देता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। नॉन मेटल क्यों लेता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता लेता है, और पॉजिटिव वो होता है जो डोनर होता है हमारे पास। ठीक है भाई, पहला तो ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल भाई यहाँ पे बताते हैं कि हमारे पास जैसे कंपाउंड KCl है, तो मैं KCl का फॉर्मेशन बताता हूँ। देखो भाई KCl, मैं KCl से नहीं स्टार्ट करता हूँ, मैं NaCl से स्टार्ट करता हूँ। सपोज आई एम सेइंग अबाउट NaCl। देखो भाई सबसे पहले NaCl कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। Na क्या हमारे पास यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब जब इसको मैं आयनाइज करूंगा तो आयनाइज होगा नहीं क्योंकि सॉलिड स्टेट में, तो थोड़ा इसको हीट करना पड़ेगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस, ये बनता है Na किसमें, गैस में। अब ये गैसेस में आ गया, फिर हम क्या करेंगे, इस सोडियम जो हमारे पास गैसियस स्टेट में बना है, इसको हम देते हैं यहाँ पे क्या, आयनाइजेशन Ag। तो जब एनर्जी दी तो ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये बन गया कैटाइन, प्लस क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया इसने भी। तो व्हाट इज आयनाइजेशन Ag, यस। Sir, please allow the students. They are waiting from last 10 minutes. Okay, Yes, sir, they are okay. messaging again and again. There are only 3 students. I allowed them. Okay. Yes, all of them join. Basically, they join again, and that create a problem here. ओके तो उसमें क्या होता है, मुझे बार बार बैक जाना पड़ता है, इसलिए इसलिए मैं स्क्रीन जब गूगल शेयर करता हूँ ना यहाँ से गूगल क्लासेस, तो मुझे बार बार बैक जाना पड़ता है। मे बी यू आर, so now we are discussing about the formation of NaCl.
Yes, it is audible to all of you. Hello. Yes, sir. तो अब NaCl का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? देखो भाई, NaCl का जो फॉर्मेशन है उसमें क्या होगा कि आप देखो, आप यहाँ पे थोड़ा सा इस पे इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन पे ध्यान देना कि भाई मैंने कहा Na, ठीक है, तो आपने एकदम से याद रखा कि Na का 11 नंबर यही होगा हमारे पास। और दूसरे से मैंने कहा क्लोरीन, तो क्लोरीन का आपको नंबर पता है भाई 2, 8 और 7 हमारे पास है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का यहाँ पे वैलेंस शेल में है, तो अगर ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन हमारे पास है यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में है, तो ये वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भी? ये जाएगा और यहाँ से जाएगा, ये दैट विल मूव फ्रॉम हियर एंड एंटर्स इनटू द क्लोरीन। तो उससे क्या होगा भी हमारे पास सोडियम के पास, देखो भी सोडियम के पास क्या हो जाएगा, सोडियम के पास रहेगा यहाँ पे 2, 8 खाली, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने वहीं पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन किया नेगेटिव चार्ज, एक गेन तो नेगेटिव चार्ज, दो गेन तो दो नेगेटिव चार्ज, और ये बना आपका 2, 8, 8। ठीक है भाई, तो दोनों की ऑक्टेट क्या होगी? स्टेबल, इसकी ऑक्टेट भी 8, इसकी ऑक्टेट भी 8। मतलब कि आपका यहाँ पे जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मैं पहले ये बता रहा था यहाँ पे आपको कि आप देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझ लेना कि मतलब सोडियम ने कैटाइन बनाया, तो मतलब सोडियम एक कैटाइन बनाया, तो जब ये कैटाइन बनाएगा, जितना कैटाइन इजी बनेगा वो कैसे बनेगा कि हमारे पास जो आपका आयनेशन पोटेंशियल है IE, दैट शुड बी लो। रिमेंबर द फर्स्ट कंडीशन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड दैट द आयनेशन पोटेंशियल इज वेरी वेरी लो। तो अगर जितना आयनेशन पोटेंशियल लो होगा उतना हमारे पास कैटाइन बनेगा, उतना हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनने की टेंडेंसी हमारे पास है। तो पहली कंडीशन याद रखना भी, व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? द आयनेशन पोटेंशियल मस्ट बी लो so that we get easily cation. सेकंड कंडीशन क्यों चाहिए? जो एनाइन हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनता है? Cl नेगेटिव आयन बनता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों नहीं चाहिए? हाईएस्ट होनी चाहिए, इट मस्ट बी हाई। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी उतनी हमारे पास यहाँ पे देखो भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एनर्जी बाहर आएगी। तो एनर्जी बाहर मतलब आपका जो क्लोरीन एनाइन है उसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो दूसरी कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। अब एक क्या बना भाई? एक कैटाइन बना, एक क्या बना? एनाइन बना। जब दोनों कंबाइन करते हैं, ये भी आपका 1 मोल है, ये भी आपका 1 मोल है, सो 1 मोल ऑफ कैटाइन एंड 1 मोल ऑफ एनाइन व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड एंड 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। नाउ वी नो दैट यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ये एक एनर्जी को रिलीज करेंगे, उस एनर्जी को बोलेंगे U। व्हाट इज U? एंड U इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी क्या होती है? आई एम राइटिंग इट। तो U के अभी हमारे पास लैटिस एनर्जी है। तो मैंने क्या कहा अभी कि अगर आपका 1 मोल कैटाइन है वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल एनाइन से, तो जब ये रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाएगा जिसको बोलूंगा NaCl, और एट द सेम टाइम वो एनर्जी को रिलीज करता है। मतलब प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक, और इस एनर्जी को बोलते हैं क्या हमारे पास? लैटिस एनर्जी। सो व्हाट इज लैटिस एनर्जी? अब देखो भाई, लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, मतलब एक्सोथर्मिक, when 1 mole of cation, 1 mole of anion combine to form 1 mole of ionic compound. Clear? So it is amount of energy released, and remember first criteria is कि हमारे पास आयनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, और थर्ड क्राइटेरिया जितना एनर्जी देखो भाई यहाँ पे भी रिलीज होगा, जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना स्टेबिलिटी। तो मतलब जो माइनस वाले केस हैं, एक्सोथर्मिक केस में ज्यादा होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे भी ये बता सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट आयनेशन एनर्जी मस्ट बी लो, क्योंकि एंडोथर्मिक हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मस्ट बी हाई बिकॉज एक्सोथर्मिक हमारे पास है, एनर्जी रिलीज करेगा, एंड लैटिस एनर्जी मस्ट बी आल्सो हाई। So if these three conditions are there, then we can say ionic bond is formed. तो भाई ये तीन कंडीशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? तो पहला इसमें जो प्रोसेस है वो आपका एंडोथर्मिक है, तो इसलिए हमें कम चाहिए एनर्जी यहाँ पे, और दूसरी जो प्रोसेस वो एक्सोथर्मिक हमारे पास है, तो हमें हाई चाहिए दोनों में, ये आपने याद रखना है। तो इसी तरह से हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे आपको यहाँ पे बताया गया। तो यू हैव हियर द डायग्राम्स फॉर द
सो आई एम जस्ट शोइंग हियर। तो इसी तरह से भी जो कैल्शियम की बात की, तो कैल्शियम की बात की तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है फ्लोरीन को। तो आप देख सकते हैं हमारे इसमें कैसे हुआ, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप देख लेना। तो कैल्शियम का नंबर अभी कितना हमारे पास, 2, 8, 10, 10 and 8, 18 and 2. So there is one shell where there are 2 electrons, so I am showing only 2 electrons. तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ पे दिखाते हैं, एक यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा भी साथ में फ्लोरीन हमारे पास 2 अटैच हो गए, क्यों अभी, क्योंकि फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बता रहा हूँ खाली। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, बना एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये बना 1 पॉजिटिव, टोटल बना कैल्शियम कितना भाई, तो कैल्शियम बना टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज। जब एक इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, ये बना F1 नेगेटिव, ये बना F1 नेगेटिव। तो भाई इसके बीच में भी फोर्सेस हमारे पास, मतलब आप सिंपल बोल सकते हैं, ये बना भाई कैल्शियम एक तरफ से फ्लोरीन, दूसरे से फ्लोरीन, तो मतलब ये बना फॉर्मूला आपका CaF2, तो कैल्शियम डाइऑक्साइड। तो जहां पे कैल्शियम आपका टोटल 2 पॉजिटिव, एक फ्लोरीन 1 नेगेटिव, और 2 की बात करें 2 नेगेटिव हमारे पास। तो इस तरह से भाई यहाँ पे भी कैल्शियम ट्रांसफर कर रहा है, और कैल्शियम ट्रांसफर के रोटेट बना रहा है। लाइकवाइज यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी एल्यूमिनियम की, दी एल्यूमिनियम के ट्रांसफर 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। सो लाइकवाइज ये आयनिक बॉन्ड बनने का फॉर्मेशन है। अब हम बताते हैं यहाँ पे, देखो भाई आपने एक टर्म तो पढ़ी, वैलेंसी पढ़ी है, तो मैं यहाँ पे वैलेंसी को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। तो वैलेंसी को मैं यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर वो आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोवैलेंसी, व्हाट आई यूज्ड टू कॉल एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। और अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है तो उसको बोलूंगा भी कोवेलेंसी। आई एम राइटिंग हियर कोवेलेंसी। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स अगर आयनिक बॉन्ड में मेंशन हो रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस शेल से गेन या लॉस हो रहे हैं toward formation of ionic compound, that is called electrovalency। और कोवेलेंट बनाना पड़े तो कोवेलेंसी। तो भाई यही 3 कंडीशन हमारे पास। फैक्टर क्या क्या भाई हमारे पास, देखो फैक्टर पहले भाई कि आयनेशन एनर्जी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटेस्ट एनर्जी होनी चाहिए भी हाई होनी चाहिए, तो दोनों हाई हमारे पास हैं। अगर मैं ये यहाँ पे बात करें कि सम ऑफ द लेटेस्ट एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मस्ट बी ग्रेटर देन ionization potential because both are negative and this must be greater than this. Second case, we are also saying that the U, lattice energy, must be greater than ionization energy minus electron affinity. Or in total case, we can say lattice energy plus ionization energy and plus electron affinity, the sum is must be equal to minus negative. Why it is negative? भाई ये कोई बताएगा नेगेटिव क्यों हमारे पास होना चाहिए? हाँ भाई, नेगेटिव मतलब एनर्जीज क्या है हमारे पास, द सम ऑफ एनर्जीज इज एक्सोथर्मिक। तो अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन है वहां पे तो एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि जितनी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी उतनी हमारे पास बॉन्ड स्टेबल होगी, उतना कंपाउंड हमारे पास लो एनर्जी का होगा उतना वो स्टेबल होगा। तो भाई ये याद रखना कि एनर्जी इस केस में अगर आयनिक कंपाउंड बने तो वहां पे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। जब एनर्जी रिलीज होगी तभी हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन। तो भाई याद रखना कि एवरी बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। That's why we can say the sum of all must be equal to negative value। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे आते हैं, तो भाई आगे हमारे पास यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो भाई यहाँ तक लैटिस एनर्जी क्लियर हो गई आपकी? यस, एनी क्वेश्चन यहाँ तक भी कुछ? यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? कुछ तो बोलो भाई। यस। नो सर। तो ये पता चला लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। देखो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो आपको आ जाती है ना, वो तो आएगी, आपको पता है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट था लेटिस एनर्जी का। तो ये भी याद रखो भी कि लेटिस एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है, आयनेशन एनर्जी के साथ। लेटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या भी दोनों हमारे पास वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करते हैं। जितनी हाई होगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, उतनी स्टेबल कंपाउंड होगा, और जितना आयनेशन एनर्जी कम होगा तो उतना हमारे पास वो जो है एनर्जी को यूज करेगा, और उतना ही हमारे पास वो स्टेबल कैटाइन बनेगा। जब स्टेबल कैटाइन बन गया, स्टेबल एनाइन बन गया, तो वो कंबाइन करेंगे, और जब वो कंबाइन करेंगे फिर एनर्जी रिलीज करेंगे, तब जाके हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। ये एनर्जी जो यहाँ पे होगा हमारे पास बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। देखो भाई लेटिस एनर्जी जो हमारे पास है वो आपका एक सिंपल सा मतलब कि डेफिनेशन यहाँ पे बताएंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट वी कैन से yes factor affecting lattice energy। so now what are factors? So the lattice energy value depends upon the charge and the distance। okay, so what is charge and distance? You know that according to Coulombic law। तो कोलम्बिक लॉ क्या बताता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, सपोज Q1 and Q2 were the charges, and distance between
देम एंड डिस्टेंस को कौन सा स्क्वायर भाई पढ़ा होगा आपने की फिजिक्स में, पढ़ा ये फॉर्मूला भाई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो अगर एक बॉडी है यहाँ पे Q1 इसका चार्ज प्लस है और यहाँ पे बॉडी है हमारे पास Q2 इसका चार्ज नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी क्या होगी भी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज इक्वल टू फोर्स। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ पे हटा दूं तो भाई हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, K Q1 Q2 upon R square. What is K here? So K is here called Coulombic constant or Coulombic force constant, and K is equal to, तो K क्या आता है, कोई बताएगा K कितना आता है? तो K is equal to 1/4 pi epsilon naught। पहले कहाँ पे यूज किया था ये, तो पहले यूज किया था ये बोर मॉडल में, और इसकी वैल्यू कितनी भी, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है, वहाँ पे मैंने वैल्यू बताई थी डायरेक्ट, तो वैल्यू क्या होती है इसकी, तो वैल्यू होती है हमारे पास अप्रॉक्स 9 to 10 raised by 9। ठीक है, ये K के लिए आती है, ये किसमें, SI यूनिट में, और यूनिट क्या है न्यूटन मीटर सेंटीमीटर कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर -2 SI यूनिट में, और CGS यूनिट में इसकी वैल्यू जो आती है K की वो आती 1, इसमें भी CGS यूनिट में। ठीक है, तो ये भाई हमारे पास यहाँ पे, तो ये K की वैल्यू हमें K से कुछ नहीं ना, बस यहाँ पे लिखा है जैसे ये थिंग्स लिखी हैं, तो आई एम जस्ट, ये देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ, तो भाई क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई जो हमारे पास Fe है वो फोर्स हमारे पास है, और Ke हमारे पास कोलम्बिक कांस्टेंट है, वैल्यू यहाँ पे दी 8.9 दैट इज इक्वल टू 9, और Q1 और Q2 हमारे पास चार्जेस हैं, और R हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस, और ये तो अगर फोर्स बढ़ती है, देखो भाई अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जब चार्ज बढ़ गया फोर्स बढ़ गई तो लेटिस एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास फोर्स बढ़ती है तो डिस्टेंस कम होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कम होता है, तो मतलब अगर मान लो हमारे पास एटम का साइज बड़ा है तो फिर लेटिस एनर्जी का क्या इंपैक्ट होगा, वही देखते हैं भाई। तो दो इसके ऊपर दो बेस हमारे पास यहाँ पे assumption भी है हमारे पास, तो भी स्विच ऑन टू द assumption। तो भाई ये पहली assumption यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी हमारे पास, तो पहला मैंने बताया कि अगर देखो भाई यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं, अगर फोर्स इंक्रीज होती है तो मतलब आपके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, और उसी तरह से जो आपका रेडियस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो मतलब अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, और अगर फोर्स बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम होगा भाई। इसी के ऊपर भी जैसे मान लो मैं दो चीजें बताता हूँ भाई, कि आपके पास एक NaCl कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड आपके पास क्या भाई, हमारे पास लेट्स से सीजियम क्लोराइड है। तो क्लोरीन को तो भूल जाओ, क्लोरीन को भूल जाओ, क्योंकि क्लोरीन का साइज बराबर है, चार्ज यहाँ पे भी 1 नेगेटिव, यहाँ पे भी 1 नेगेटिव, साइज बराबर, आर बराबर, तो आर भूल जाओ। बस रहा क्या यहाँ पे, सोडियम। तो यू नो दैट सोडियम और सीजियम की बात करें तो सोडियम भाई यहाँ पे और सीजियम कहाँ पे, बिल्कुल बॉटम पे। तो बताओ भाई डोन द ग्रुप, ये कहाँ जा रहे हैं, डोन द ग्रुप जा रहे हैं, क्योंकि सीजियम और जो हमारे पास सोडियम है, तो आपको मैं बता दूं, ये आपका हाइड्रोजन रहा, ये आपका लिथियम रहा, ये आपका सोडियम रहा, ये आपका पोटेशियम रहा, ये रुबीडियम रहा, ये आपका सीजियम रहा, और ये आपका फ्रेंचियम। ठीक है, तो आप किसकी बात कर रहे हो, सोडियम की, और ये कहाँ पे आ रहे ग्रुप में, ये ग्रुप कौन सा, कोई बताएगा, व्हाट इज दिस ग्रुप, दिस इज ग्रुप नंबर 1, और इसकी वैलेंसी 1 ही होती है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जर्नल NS1। ठीक है, तो यहाँ पे बता, जिसे मैं बता दूं, यहाँ पे इसका 1s1 आएगा। अच्छा, इसी तरह से लिथियम का क्या आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s1 अगेन। ठीक है, तो ये सेकंड शेल में, ये फर्स्ट शेल में, ऐसे हम करते जाएंगे यहाँ पे। तो अब देखो भाई यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोडियम से लेके कहाँ पे आ रहे हैं, सीजन पे आ रहे हैं। तो पहली बात है भाई हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है भाई, यहाँ पे एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है भाई। तो अगर साइज इंक्रीज मतलब आपका आर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर आपका आर इंक्रीज हो रहा है, जब आपका आर इंक्रीज हो रहा है तो एफ क्या होगा भाई, एफ क्या होगा, एफ डिक्रीज करेगा, तो फोर्स डिक्रीज करेगी, मतलब फोर्स डिक्रीज कर रही है। तो मतलब अगर फोर्स डिक्रीज कर रही है हमारे पास, तो भाई फोर्स, तो अगर फोर्स डिक्रीज कर रही है तो सिंपल सी बात है भाई हमारे पास चार्जेस होंगे, कम होंगे। तो मतलब ये हो गया कि आपका जो यहाँ पे NaCl है वो आपका स्टेबल कंपाउंड है। तो देखो भाई दोनों कंपाउंड हमारे पास आयनिक थे, तो व्हाई वी चूज NaCl इज स्टेबल कंपाउंड, बिकॉज सीजियम का जो साइज है वो बड़ा है। तो अगर फोर्स हमारे पास कम है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी हमारे पास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और दूसरी बात करें, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो भाई यहाँ पे सीजियम का रेडियस बड़ा था एज कंपेयर टू सोडियम से, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे स्टेबल आएगा। एक चीज हो गई भी, किसके ऊपर की बात, साइज के ऊपर बात की। चार्ज की बात करते भी, अब मैं फिर NaCl ले रहा हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ भाई, सपोज मैं ले रहा हूँ अब Mg
Cl2, ठीक है भाई। फिर क्लोरीन को कैंसिल करता हूँ क्योंकि क्लोरीन का 1 नेगेटिव चार्ज, एक क्लोरीन का यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज, तो छोड़ दो। तो दूसरी बात करते हैं यहाँ पे सोडियम, सोडियम का 1 पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव चार्ज। अब भाई देखो भाई, इसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव, किसके ऊपर चार्ज ज्यादा? मैग्नीशियम के ऊपर। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सोडियम के ऊपर। तो मतलब जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा उसके ऊपर फोर्स ज्यादा, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो मतलब ये हो गया कि आपका जो MgCl2 है दैट इज मोर स्टेबल देन NaCl। Likewise, you can say AlCl3 because aluminum is here +3, Be is +2, beryllium, Na is +1। तो ये सारे स्टेबल हैं क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो भाई हम ये बता सकते हैं कि जब हमारे पास चार्ज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास है कि यहाँ पे लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी। और जब साइज बढ़ेगा किसी भी कैटाइन एनाइन का हो, सपोज कोई एनाइन क्यों ना, कैटाइन क्यों ना हो, तभी हमारे पास लैटिस एनर्जी कम होती है क्योंकि फोर्स हमारे पास कम होती है। तो ये भाई हमारे पास आपका लैटिस एनर्जी का डिपेंडेंस है। तो यहाँ पे जो मैं 3 एग्जाम्पल बताई भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is defining the whole that is I am giving above. तो remember that I am providing the examples are like this. अब भाई हमारे पास देखो लैटिस एनर्जी को कैसे डिटरमाइन करें। So how to determine लैटिस एनर्जी? Okay. तो अब लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने का वे भाई हमारे पास क्या है? Now remember, अगर मुझे लैटिस एनर्जी को डिफाइन करना तो I need a cycle that is called Born-Haber cycle. Born-Haber cycle. What is the cycle? इसमें हम पूरा दिखाते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होगा। देखो भाई जैसे मैंने आपको पहले शुरू किया था, फिर बाद में उसको नहीं बोला, तो अब यहाँ पे एक साइकिल है, इस तरह का साइकिल आप देख रहे हो डायग्राम में, क्लियर है भैया? देखो मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ। तो ये आपका सोडियम मेटल है, जस्ट लेट मी पहले इसको समझाता हूँ है क्या ये। देखो भाई इसमें क्या बताया कि ये आपका, देखो भाई 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहले जो सोडियम मेटल है उसको हमने गैस में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट वी नीड भाई, how to convert a sodium metal solid into gas? By using sublimation, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जब सोडियम गैस में चला गया उसको हमने फिर क्या दी भी, आयोनेशन एनर्जी दी। यहाँ पे भी हमने हीट देनी पड़ेगी। तो ये क्या देगा भाई, यहाँ पे कैटाइन बनेगा, Na पॉजिटिव कैटाइन प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो सेकंड स्टेप इज आयोनेशन एनर्जी दी तो कैटाइन बन गया भी, ठीक है, कैटाइन बन गया। तो हमें यहाँ पे 2 वे से, यहाँ पे भी एनर्जी हमें यूज हुई, एंडोथर्मिक यहाँ पे एनर्जी यूज हुई हमारे पास, ठीक है। तो हमें कैटाइन बनता है जब हमारे पास यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। अब चलो ये इलेक्ट्रॉन तो जाएगा क्लोरीन के पास, पर अभी बता रहे नहीं है। दूसरी तरफ से भी क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, तो पहले क्लोरीन को, अगर ये गैस, इसको डिशिएट करना पड़ेगा। इसको डिशिएट किया, डिशिएशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, मैं कितनी चाहिए भी हमारे पास, तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो हमारे पास Cl बन जाए। अब Cl जो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, तो ये Cl जो हमारे पास यहाँ पे, अगर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसने एनर्जी रिलीज की, एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एनर्जी एंथैल्पी, वी कैन सेलेक्ट ऑन गेन एंथैल्पी। ये बनेगा आपका Cl नेगेटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन 2, अगर 1 है तो 1। बट हमें कितने क्लोरीन चाहिए भाई, Na पॉजिटिव के लिए आपको 1 क्लोरीन चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो डिसिशन एनर्जी है इसको हाफ करेंगे, जितनी भी आएगी, सपोज जितनी भी आती है उसको हाफ करेंगे NaCl में, क्योंकि हमें 1 ही चाहिए यहाँ पे, we need only 1, so for 1 we divide by the total distance energy by 2, so we get d/2, तो यहाँ पे भी d/2। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, सोडियम से आया था, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, सोडियम से आया था। तो भाई जो हमारे पास ये कैटाइन बना, Na पॉजिटिव बना और Cl नेगेटिव बना, दोनों ने कंबाइन करके हमारे पास -U निकाला और NaCl बनाया। तो आपको लगता है ये साइक्लिक प्रोसेस होगा? बिल्कुल साइक्लिक होगा। देखो यहाँ पे साइक्लिक है बिल्कुल। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ ये कैसे साइक्लिक है हमारे पास। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। देखो भाई ये देखो, यहाँ से शुरू किया, सोडियम और क्लोरीन को दोनों को लिया, तो भाई पहले सब्लिमेट किया तो क्या बना, सॉलिड से गैस बना, ठीक है। फिर उसको आयनेशन दी तो ये कैटाइन बना, ठीक है भाई, कैटाइन बना। दूसरे क्लोरीन को डिशिएट किया तो यहाँ पे डिसिएशन लिखा ΔH, डिशिएट किया, यहाँ पे 1/2 मॉलिक्यूल को पहले किया, तो अगर आपने Cl लिखा तो फिर यहाँ पे क्लोरीन गैस बनी, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी। तो देखो भाई यहाँ पे भी एनर्जी प्लस, ये भी एनर्जी प्लस, ये भी एनर्जी प्लस, ये एनर्जी माइनस यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो ये आयन बना। फिर जब एक कैटाइन और एनाइन बना, दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया भाई, NaCl, तो यहाँ पे भी -U हो गया, लेटेस्ट एनर्जी होगी। तो मतलब आप तो ये बता सकते हैं ये पूरे स्टेप हैं। दूसरा यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो टोटल स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन है ΔH,
देखो भाई डेल्टा H नॉट क्या होगा, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ, remember, sum of heat of sublimation, I'm writing S, plus heat of ionization, I'm writing I, plus then अब देखो भाई यहाँ पे अगर देखें तो इट इज सब्लिमेशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन और हीट ऑफ डिस्टिलेशन। NaCl के लिए D/2 आएगा। D/2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमें एक क्लोरीन चाहिए, दो नहीं चाहिए। उसके बाद माइनस, माइनस क्या लगाना भाई यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जो रिलीज होती तो माइनस दिखा दो। लेटेस्ट एनर्जी यहाँ पे भाई हमारे पास देखो भाई लेटेस्ट एनर्जी का केस है, अगर आप इसको माइनस में ले रहे हो क्योंकि ये भी माइनस में होती है, तो ये माइनस में होगी तो आपने यहाँ पे यू प्लस में करना, अगर यहाँ पे आपका प्लस हो तो यहाँ पे अपनी यू माइनस में, बेसिकली आपने यहाँ पे प्लस यू करना है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया अब आपका, ये हो गया सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस D/2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आपका यू है, तो यहाँ से आप लेटेस्ट एनर्जी यू निकाल सकते हो। अब इसी बेसिस में मैंने क्वेश्चन निकाला तो भाई आपका ये हो गया। और ये जो मैंने किया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेसेस लॉ ऑफ समेशन ऑफ हीट। सो वी आर एडिंग द हीट ऑफ एवरी स्टेप एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मतलब अगर कोई रिलीज कर रहा तो पॉजिटिव, अगर कोई सॉरी रिलीज कर रहा नेगेटिव, अगर कोई एब्जॉर्ब कर रहा तो पॉजिटिव हमारे पास। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो भाई यही फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सो दिस इज द फार्मूला, आई एम राइटिंग हियर Q, आई एम राइटिंग हियर Q for this delta H naught, and that is called S for sublimation, I for ionization, and D/2 यहाँ पे मैंने क्लोरीन के लिए लिया और माइनस मैंने इसके लिए लिया और U मैंने प्लस किया यहाँ पे। अब देखो भाई U को मैंने प्लस क्यों किया, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखो U क्या है बेसिकली, मैंने अभी जिसे मैंने यहाँ पे कहा, एक मोल कैटाइन एक मोल एनाइन कंबाइन करेंगे तो NaCl बनाएगा। तो क्या है जिसने भाई माइनस U दिया। अगर मैं उल्टा बताऊं कि NaCl ब्रेक हुआ इसमें Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव, अब बताओ क्या होगा, अब प्लस U होगा। मतलब अब लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास यहाँ पे पहले रिलीज हो गई क्योंकि एक मोल कैटाइन एनाइन कंबाइन हुआ। दूसरे केस में आप एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ रहे हो तो उतनी एनर्जी हमारे पास रिलीज भी होगी भी। ठीक है, जितनी अमाउंट एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब होता है उतना ही क्या होता है, रिलीज होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम भी मैंने शायद आपको, कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास इसी कंपाउंड की -2 है तो उसकी आयनिक एनर्जी क्या होगी भी, बताओ? +2, क्योंकि दोनों क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास। वैसे यहाँ पे भी आपने देखना है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। देखो भाई, तो हमारे पास S दिया है 107, हमारे पास D दिया है 244। ठीक है, तो भाई यहाँ पे दो क्लोरीन के लिए लिखेंगे तो 1 के लिए क्या होगा भाई, तो 244 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 122, 122 हो जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पे। देन I दिया कितना भाई, तो I भी प्लस में होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई तो क्लोरीन के लिए दी है, यहाँ पे एक ही क्लोरीन रिक्वायर्ड है, अगर दो होते तो मल्टीप्लाई 2 से करते, तो यहाँ पे ये -248 दिया हुआ है। और ओवरऑल हीट मतलब Q दिया है, तो Q कितना दिया भाई, यहाँ पे Q दिया माइनस में, तो मैंने सारी वैल्यू लगा के हमारे पास यहाँ पे निकाला हुआ है। तो हमारे पास जो U आया तो -7.5 किलो जूल आया। तो आप फॉर्मूले को देख सकते हो भाई, यहाँ पे 1/2 मैंने हाफ किया क्योंकि ये आपका एक क्लोरीन चाहिए। यहाँ पे भी क्लोरीन के लिए आपने अगर दो होते तो यहाँ पे ट्वाइस से मल्टीप्लाई करते, तो भाई इस तरह से हमने लेटेस्ट एनर्जी निकाली। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, फार्मूला याद रखना है बस, ये फार्मूला यहाँ पे है। तो दिस इज फार्मूला इज बेस्ड अपॉन हेसेस लॉ। व्हाट इज हेसेस लॉ? हेसेस लॉ ऑफ समेशन ऑफ हीट सेज दैट कि अगर आपके पास एक रिएक्शन चल रही है, मान लो आपकी रिएक्शन चल रही है, A to B जा रहे हो आप, B से आप C जा रहे हो, C से आप D जा रहे हो, तो जो हीट यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H3 है, और सपोज ये आपकी H4 है, तो आपकी हीट होगी, टोटल हीट होगी डेल्टा H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, जितने स्टेप में हमारे पास है अप टू n, तो उन सबको आप क्या को सम करो। तो अगर यहाँ पे मान लो ये माइनस हो रही तो आप इसको माइनस लिख दो, अगर यहाँ पे सपोज ये माइनस है, ये भी माइनस लिख दो, जो माइनस माइनस में जो प्लस है, प्लस में जो रिलीज है तो उसको आप माइनस कर दो, जो आपकी एब्जॉर्ब उसको आप प्लस कर दो, तो एल्जेब्रिक सम कर दो, टोटल हीट आपका निकल जाएगा। ठीक है भाई, ये यहाँ से हो जाता है। तो इसकी बेस पे आपको क्वेश्चन दूंगा भाई, इसकी बेस पे क्वेश्चन दूंगा, करने के लिए आप उसको करोगे एंड यू विल टेल मी आंसर। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस today's topic. Now listen, what are facts about ionic compound? Number one, they are crystalline. They are crystalline. Okay. Their melting point and boiling point is high. क्यों भाई melting point boiling point high क्यों होता है? क्योंकि electrostatic forces होते हैं हमारे पास. They are hard and brittle. Okay.
सॉल्युबिलिटी, देखो भाई सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि जो हमारे पास आपका कंपाउंड है अगर पोलर है तो पोलर में सॉल्युबल करेगा, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में सॉल्युबल करेगा, ठीक है। ओके, तो ये भाई, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक प्रिंसिपल बोलते हैं उसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सो इट इज बेस्ड ऑन लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दैट इज द केस। नंबर थर्ड, कंडक्टिंग, तो भाई ऐसे तो करंट पास नहीं करते बट मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन में कंडक्टिंग होते हैं ये। नेक्स्ट, तो भाई जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड हैं दे आर नॉन रिजिड, दे आर नॉन डायरेक्शन, इनकी कोई शेप नहीं होती भाई। जैसे आपको मान लो, जैसे मैं बताता हूँ कि भाई हमारे पास CH4 है, तो आप बोलोगे सर CH4 की शेप ऐसे होती कुछ, ठीक है, अभी तो ये बता रहा हूँ, ये मतलब है ना, ये थोड़ा डायमंड टाइप, टेट्राहेड्रल टाइप, ये शेप है किसकी, CH4, बट CH4 आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ऐसे आपके NaCl की कोई शेप नहीं होगी, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, दे आर नॉन डायरेक्शनल, और इसीलिए उसमें कोई भी तरह का आइसोमेरिज्म, जैसे हम दिखाते थे लास्ट टाइम दिखाया था इसमें प्रोपेन में आइसोमेरिज्म दिखाया था, चेन, वो यहाँ पे कुछ नहीं होगा भाई। दे शो आइसोमॉर्फिज्म। व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम हो, कैसे भी, जैसे मान लो ये हमारे पास आपका N है, ये आपका फ्लोरीन है, इसने एक N पॉजिटिव, इसने फ्लोरीन दिया, तो बताओ भाई यहाँ पे क्या होगा, 2 8, यहाँ पे भी 2 8, आप देखो कैसे, क्योंकि पहले सोडियम के पास क्या था भाई, 2 8 1 था, और क्लोरीन के पास 2 and 7 था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया ना, 8 हो गया, जब इसमें लूज हो गया तो माइनस बन गया यहाँ पे, तो ये भाई Na पॉजिटिव, मतलब देखो आप दोनों में क्या हुआ कि दोनों में जो आपका Na पॉजिटिव आयन है और जो आपका F नेगेटिव आयन है, यहाँ पे 2 8 स्ट्रक्चर था, यहाँ पे भी 2 8 स्ट्रक्चर था। इसी तरह से सेम जो आपका NF है वहां पे आपका ये स्ट्रक्चर है। तो आप मैग्नीशियम को देखो भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखो आप, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। सो रिमेंबर मैग्नीशियम का नंबर हमारे पास 12 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 10 बचेगा। ऑक्सीजन का नंबर 8 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8। क्या भाई इसका कैटाइन स्ट्रक्चर और इसका कैटाइन स्ट्रक्चर सेम है, इसका एनाइन स्ट्रक्चर 2 8, इसका एनाइन स्ट्रक्चर सेम है, मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी एक तरह की है। तो ये NaF जो है दैट इज आइसोमॉर्फ ऑफ Mg, वी कैन से magnesium oxide. So both NaF and MgO are isomorphs. So this isomorphs is present in the ionic compound. Number second, they show ionic reactions. So last time you have done so many reactions, like one example I am quoting here. We have silver nitrate and that react with sodium chloride. तो आपको पता है ये आयनिक रिएक्शन हमारे पास है, प्रेसिपिटेशन हमारे पास है, ये देगा भाई क्या हमारे पास AgCl प्लस हमारे पास NaNO2 NaNO3, ठीक है। तो आपके YPP बनते हैं, आपको याद आया होगा, ये भी हमारे पास। और दूसरा बात पे यहाँ पे ये शो करते हैं एनआइसोट्रॉपी। व्हाट इज एनआइसोट्रॉपी, बेसिकली कि मान लो आपके पास ये एक हमारे पास प्लेन है, लेट्स से आई एम सेइंग कि आपका प्लेन X, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इस प्लेन में है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इस प्लेन में है। तो इस प्लेन का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू दिस प्लेन का, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दोनों का डिफरेंट है, तो इस डायरेक्शन में डिफरेंट है, इस डायरेक्शन में डिफरेंट है, एक बात। या फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे मान लो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सपोज 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सपोज 2 है, यहाँ पे कितना रिफ्रैक्टिव सपोज 3 है, तो मतलब आप देख सकते हो कि हर डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास डिफरेंट है। तो जब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या फिर आपकी थर्मल प्रॉपर्टी दोनों हमारे पास डायरेक्शन में डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं भाई क्या, हमारे पास एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। एंड लास्ट एंड लीस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1.9। कितना राउंड चाहिए भाई, 1.9। कैसे भाई, देखो भाई सोडियम का केस मैं आपको बता दूं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेट कितनी होती है हमारे पास 3.35। अच्छा सोडियम कितनी भाई हमारे पास, सोडियम की होती है हमारे पास 0.9, दोनों को माइनस करो भाई हमारे पास, तो व्हाट इज माइनस ऑफ दिस